Good morning, dear students. In our online classes, we started this chapter number 6, lines and angles. Okay, in our second semester. So, first in this video, we discuss about the introduction of this chapter, lines and angle. Okay, जो exercise 6.1 है उसका full introduction. Okay, कि what is the lines, what is the angles. Okay, different types of angles, different types of lines. So, for started this chapter, before we discuss about some basic concept. Okay, we already studied in our previous classes, in previous junior classes. Okay, so first this chapter, lines and angles, is a geometry chapter. Okay, so geometry basically start from the point, then line segment, ray. Okay, then angle. Okay, so first हमारा जो point है वो point. Okay, so first point. Okay, what is the point? See, point, this is a just imagination. Okay, point means sharp. मान लो कि आपके पास पेंसिल है. ओके, जब आप उसको शार्पनर से शार्प करेंगे, ओके, देन उसका जो पॉइंट है, ओके, एग्जैक्ट मान लो कि ये पॉइंट हमने किया. ओके, like this. So this is the point. Okay, so for our easiness हम point को represent करते हैं as a dot. Okay, so point is represented as a dot. ओके, डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सिंपली. सो फर्स्ट हमारा जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पॉइंट. ओके, सेकंड वन लाइन. What is the line? Simple. Line is the combination of points. Okay, so many points. Okay, मान लो कि एक points, another point. तो ये जो एक आपका geometrical shape create होगा. Okay, this is the line. Okay, so line is the combination of points. Okay, so many points का जो combination होगा, okay, वो आपको create करेगा line. तो line का simple definition. Okay, line is a combination of points. Points का combination है. Okay, see, line is a one dimensional figure. Okay, line आपका one dimensional है. Okay, I think you know about the dimension. One dimensional, two dimensional, three dimensional. Okay, so any shape have a one dimension, that means line. Okay, जिसके पास एक ही dimension, चाहे x axis हो, y axis हो या z, because we know that right, कि total three dimension है, 1, 2 and 3. So line के पास only one dimension होता है. Okay, so let's suppose this is the line. Okay, because only अगर ये हम यहाँ पर अगर प्लॉट करें, so मान लो कि x, y और z डायमेंशन. ओके, x एक्सिस, y एक्सिस और z, ये आपके थ्री एक्सिस है जो थ्री डायमेंशन का क्रिएट करेंगे. ओके, मान लो कि आप लाइन को यहाँ पर रखते हो, दैट मींस यहाँ पर आपका ओनली ऑन x एक्सिस ही, दैट मींस वन डायमेंशन. मान लो कि लाइन आपका ये डायरेक्शन में गिवन है, दैट मींस ओनली y एक्सिस प्रेजेंट. अगर मान लो कि लाइन आपका ये डायरेक्शन में गिवन है, दैट मींस z. दैट मींस कि कोई एक ही डायरेक्शन है यहाँ पर. अब लाइन जो होगा वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा. ओके, दैट मींस या तो x एक्सिस पर हो, y एक्सिस पर हो या z. दैट मींस लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर. पॉइंट हैव एनी डायमेंशन? नो, पॉइंट हैव नो एनी डायमेंशन. पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता. ओके, सो पॉइंट हैव नो डायमेंशन. आई थिंक यू नो, बिकॉज़ इन द 5th चैप्टर, ओके, जो इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्री, ओके, वहां पर हमने डिस्कस किया था, पोस्टुलेट्स थे. ओके, डिफरेंट, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट हैव नो एनी dimension. Okay, but line have a one dimension. So line, what is the definition of line? So line is a combination of points. Line is a one dimensional figure, because ये भी diagram. Line is a one dimensional
डायमेंशनल फिगर। ओके, लाइन आपका वन डायमेंशनल फिगर है। और लाइन के बारे में, लाइन इज अ एक्सटेंड फ्रॉम टू साइड्स। ओके, लाइन आप दोनों साइड से आपका क्या होता है, एक्सटेंड होता है। ओके, सो लाइन extends from both sides, ओके। लाइन जो है आपका एक्सटेंड होगा बोथ ऑफ साइड से। ओके, दैट मींस कोई एक पॉइंट से नहीं, यहां पर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है और इनफाइनाइटली बोथ ऑफ साइड क्या होगा, एक्सटेंड होगा। अब लाइन को हम शो करेंगे। ओके, ये आपका लाइन, मान लो कि लाइन ओके, लाइन ए बी। ओके, तो उसको हम शॉर्ट में शो करते हैं ऐसे। ओके, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, लाइन ए बी। ओके, सो लाइन हैव एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ ऑफ साइड, दैट मींस लाइन हैव नो एनी एंड पॉइंट। ओके, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। Line have no end point. Clear? So this is the some basic information about the lines. Okay, because हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल पर, पूरा चैप्टर डिपेंड है। ओके, और ये जियोमेट्री का बेसिक है। ओके, सो आपको हर जो वर्ड्स है ओके वो क्लियर होने चाहिए, उसका जो डेफिनेशन है ओके उसका जो मीनिंग है वो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ओके, अदरवाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू आर नॉट अंडरस्टूड। देन लाइंस मींस ओके, अगेन लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज अ वन डायमेंशनल डायग्राम या फिगर। ओके, लाइंस एक्सटेंड फ्रॉम बोथ ऑफ साइड फ्रॉम इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो एक्सटेंड होगा। लाइन हैव नो एनी एंड पॉइंट, बिकॉज एक्सटेंड हो रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, दैट मींस नो एनी एंड पॉइंट। ओके, और लाइन को हम ऐसे शो करेंगे। ओके, ये हमारा मैथमेटिकल, कोई अगर लाइन ए बी गिवन है देन हम उसको ऐसे शो करेंगे, लाइन ए बी। ओके, बोथ ऑफ साइड एरोज। क्लियर? सो दिस इज द लाइन। नेक्स्ट वन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, थर्ड वन इज द लाइन सेगमेंट। सिंपल है, लाइन क्लियर, दैट मींस लाइन सेगमेंट इज। सेगमेंट बोले तो सेगमेंट मींस पार्ट, सेगमेंट मींस पार्ट। अब लाइन सेगमेंट तो लाइन का पार्ट, सो लाइन सेगमेंट मींस वन पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक, पार्ट ऑफ द लाइन शॉर्ट में। ओके, पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन। ओके, कोई एक लाइन है, मान लो कि आपका ए बी लाइन था। ओके, ए बी लाइन गिवन है। ओके, अब ए बी लाइन में से मैंने एक पार्ट वहां से निकाल लिया। ओके, सो लेट्स सपोज मान लो कि ये पार्ट मैंने निकाल लिया, ए। ओके, ये था हमारा लाइन। अब ये पूरा लाइन है, ये जस्ट एक पार्ट है। ओके, लाइन का जस्ट एक पार्ट, दैट मींस लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, क्लियर? ये पूरा लाइन था। ओके, और ये आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल फिगर। लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल फिगर। ओके, सो लाइन सेगमेंट इज वन डायमेंशनल figure. Clear? Third one. Okay, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड वन। See, line is a one dimensional, so also line segment is a one dimensional. See, अब line extend from both of, line जो आपका both of side extend होगा। okay, but
लाइन सेगमेंट एक्सटेंड होगा नहीं, ओके। सो यहां पर रीड करो, लाइन हैव अ नो एंड पॉइंट बट लाइन सेगमेंट हैव अ टू एंड पॉइंट्स, ओके। बिकॉज लाइन सेगमेंट आपने कट किया, ओके, तो ये यहां पर स्टॉप हो गया, ओके, ये भी यहां पर आपका स्टॉप हो गया। दैट मींस लाइन सेगमेंट हैव अ टू end points, okay. Line have no any end points but line segment have a two end points. Keep in your mind, line segment have two end points. Line segment have a two end points, okay. ये रिमार्क है, याद रखो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस कि लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता बट लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट होते, ओके। लेट्स सपोज मान लो कि आपको लाइन, ये आपको P गिवन है, ये Q गिवन है, देन सिंपली हम इसको मैथमेटिकली शो करेंगे। ये आपको लाइन सेगमेंट PQ गिवन, लाइन सेगमेंट PQ, तो मैथमेटिकली हम शो करेंगे PQ और ये, ओके। ये आपका रीड होगा लाइन सेगमेंट PQ और ये था आपका लाइन AB। क्लियर? पॉइंट लाइन सेगमेंट क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रे, ओके, रे। सो आई होप यू क्लियर अबाउट पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। सी दिस ऑल द थिंग्स इज वेरी बेसिक, ओके, बिकॉज दिस things is very helpful for your geometry study, okay, because lines, angles, ये आपका पूरा geometry start होता है, okay. So ये आपका points, lines and line segment, okay. So now we start our fourth word is a ray, okay. Fourth word is a ray, and note down this all the things in your notebook. Okay, I think you all know very well about ray. अब ये इसका सिंबल है, ओके, रे का। रे मीन्स नॉट एक्स रे, वाई रे, हाई रे, ओके। रे, सी रे मान लो लाइन का एक पार्ट है, ओके, बट रे हैव वन एंड पॉइंट, ओके। रे आपका एक ही डायरेक्शन में, कोई भी एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, ओके। रे हैव वन फिक्स पॉइंट, ओके, मीन्स रे have one end points. Ray have one end points, okay. So ये आपका end point है, okay. ये एंड पॉइंट, ओके, और ये उसका डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ओके। रे आपका ये डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन, बट रे हैव वन एंड पॉइंट, ओके। एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा होगा वो एक्सटेंड होगा, ओके। सो मेनी डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो हो सकता है, ओके। सो दिस इज द रे, ओके। सो रे हैव वन एंड पॉइंट, ओके, क्लियर। तो सिंपल है, रे तो सिंपल है, ओके। और रे एक्चुअली वो लाइन का एक पार्ट है, ओके। सो मान लो कि आपको गिवन है ऐसे लाइक दिस, ओके। तो रीड करेंगे रे ए बी, रे पी क्यू, रे एक्स वाई, रे वाई जेड, रे आर एस, ओके, लाइक दिस। सो रे ये आपका फोर्थ टर्म है हमारा, ओके, जो है रे, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब ये जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था वो अबाउट थोड़ा थोड़ा लाइंस के बारे में, ओके। अब लाइंस और वो तो बाकी, ओके, बट ये जो हमने डिस्कस किया, ओके, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके, ओके, जूनियर क्लासेस में। सो अब हमारा स्टार्ट होगा एंगल्स, ओके। ये थोड़ा माहिती था लाइंस के बारे में, अब एंगल्स। सो व्हाट इज द एंगल, ओके। फर्स्ट आपके माइंड में कि एंगल मींस व्हाट, ओके, एंगल मींस व्हाट। लेट्स सपोज कि
आई हैव दिस बुक, ओके, ये प्लेन बुक है, ओके। जब मान लो कि मैं ये बुक को ओपन करूं, सी व्हेन आई ओपन दिस बुक, देन सी this is the upper surface, this is the bottom surface, then see now upper and bottom surface are same, okay, कोई difference नहीं, but when I open this book, then see what you observe that हाँ कि दो सरफेस अलग, हाँ ये तो मुझे भी पता है, ओके। See when I open this book, then see between upper surface and बॉटम सरफेस, तो बिटवीन यहां पर एंगल क्रिएट होगा, दिस इज द एंगल, सेम में, ओके। तो एंगल ये मान लो कि ऐसे कोइंसिडेंट टू लाइंस, ओके, टू इंसिडेंट सॉरी कोइंसिडेंट टू रेज, ओके, और रेज मान लो कि यहां पर ऐसे होता है, ओके। तो बिटवीन देम सी दिस इज एंगल, ये ऐसे हुआ एंगल, ओके, एंगल ये हुआ, ओके। सो दिस इज द एंगल। तो अब एंगल का प्रॉपर डेफिनेशन, देन रे का स्टोरी क्लियर है। तो अब हमारा न्यू टर्म से वो है हमारा एंगल, तो हम ये सारा इरेज कर देता हूं, ओके, और एंगल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये चीजें क्लियर होगी, देन एंगल आपके लिए इजी, ओके। एंगल्स का हम डिस्कस करेंगे, ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। अब एंगल का डेफिनेशन, सो सी एंगल के लिए टू रे चाहिए, ओके। द कॉमन एक वर्टेक्स होगा आपका, दो आर्म्स होंगे, ओके, और बिटवीन उनके एंगल क्रिएट होगा, ओके। सो एंगल इन एंगल वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स, ओके। तो एंगल जो आपका क्रिएट होगा वो एक वर्टेक्स पॉइंट होगा और टू आपके आर्म्स होंगे। लेट्स सपोज ये आपका रे, ओके, जनरली आपका जो एंगल जो क्रिएट होगा वो रे से होगा। मान लो कि ये रे, ओके, ये कंडीशन है, ये आपका एक रे, ओके, क्लियर। अब ये रे आपका रोटेट करेगा, ओके, ये रे आप पर्टिकुलर ये आपका इनिशियल स्टेज, तो मैं इनिशियल स्टेज मान लेता हूं कि दिस इज ये मेरे रे का इनिशियल स्टेज, ओके, क्लियर। चलो ये मेरे रे का इनिशियल, चलो थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ओके, मान लो कि ये पॉइंट, ओके, दिस वन इज अ रे, कोई भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये ऐसा फिक्स नहीं कि यही डायरेक्शन में होगा, ओके, कि राइट हैंड साइड में ड्रॉ करें, ऐसा नहीं, कोई भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो दिस वन इज माय रे, ओके, ये मेरा रे जिसका इनिशियल कंडीशन ये, ओके। जब मेरा रे रोटेट करेगा, ओके, सो ये रोटेट किया, ये मेरा रे रोटेट किया, ये तो मेरा इनिशियल स्टेज, ओके, ये मेरा इनिशियल स्टेज है। अब रे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो जब भी रे रोटेट करेगा, देन यहां पर जो क्रिएट होगा वो होगा हमारा एंगल। सी यहां पर आप देख रहे हो, ये हमारा इनिशियल स्टेज, ये हमारा जब रे रोटेट हुआ, देन बिटवीन इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर बिटवीन जो हमारा क्रिएट होता है वो होता है हमारा एंगल। सी ये हमारा एक वर्टेक्स पॉइंट है जो कॉमन, और ये जो हमारा रे होता है वो एंगल के लैंग्वेज में बोलते हैं आर्म्स, ओके। तो ये हमारे टू आर्म्स है, ओके। तो एंगल के लिए टू आर्म्स हो गए और वन एक कॉमन आपका वर्टेक्स होगा। ये अगर मान लो कि उसको मैं x दे दूं और ये y, ओके, तो ay एंड ax उनका कॉमन वर्टेक्स पॉइंट विच वन इज a is a common vertex, एक आपका ay and ax is the two arms, clear। so this is the about the angles। तो ये जो टू आर्म्स के बिटवीन आपका क्लियर हुआ, ओके। सो इन एंगल वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स, एक वर्टेक्स होगा जो कॉमन वर्टेक्स होगा, ओके। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल
ये जो आपका है ए इज अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। दिस वन इज अ एंगल, ये आपका है एंगल। ओके, अब यहां पर हम एंगल को बोलेंगे थीटा। थीटा ये एंगल के लिए मैथमेटिक्स में यूज होने वाला एक सिंबल है। ओके, थीटा, थीटा। ओके, ये याद रखो। ओके, ये थीटा है जो एंगल को हम शो करते हैं। ओके, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं थीटा। ओके, ये याद रखो क्योंकि जब भी हम एंगल के टाइप से डिस्क्राइब करेंगे, ओके, देन हम थीटा का यूज करेंगे। क्लियर? तो उसको हम शो करते हैं। ये जो हमारा क्रिएट होगा वो है हमारा थीटा। ये आपका मान लो कि x है और ये आपका y है। AY एंड AX इज अ बोथ ऑफ रे, बट एंगल क्रिएट हो रहा था हम उसको आर्म्स भी बोलेंगे। तो ये हमारा एक आर्म्स, ओके, तो AX एंड AY आर आर्म्स। क्लियर? तो ये हमारा एंगल। तो एंगल कैसे क्रिएट होगा कि जब एक हमारा रे जो इनिशियल स्टेज में, ओके, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। ओके, और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल रे के रोटेशन के बिटवीन जो भी क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल। जो उनके बिटवीन का जो ये जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा एंगल, मींस थीटा। ओके, और ये जो हमारे होंगे वो आर्म्स होंगे, और यहां पर जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा वर्टेक्स पॉइंट। ओके, और वो होगा कॉमन, दोनों आर्म्स के लिए कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होगा। ओके, यहां पर हमने डिफरेंट यही थे, बट नेमिंग हमने डिफरेंट दिया। ओके, तो टू आर्म्स डिफरेंट है। ओके, और उनके बिटवीन जो क्रिएट होता है वो है हमारा थीटा, और ये हमारा ए जो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। क्लियर? सो ये जस्ट एंगल के बारे में, क्योंकि एक्चुअली एंगल क्रिएट कैसे होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंगल को देखकर आपको लग रहा होगा कि ओनली 2 या 3 टाइप्स होंगे। ओके, बिकॉज यू नो द ओनली ऑन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ओके, बट हियर वी डिस्कस अबाउट द 12 एंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल में टोटल हमारे पास 12 टाइप्स के एंगल्स है। ओके, जो हम डिफरेंट वे से हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बिकॉज ये एंगल पूरा चैप्टर आपके लाइन से एंगल के बिटवीन है, तो सारे क्वेश्चन होंगे वहां पर आपका एंगल, जितने भी एंगल है उनके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ओके, सो व्हेन यू क्लियर अबाउट ऑल द एंगल्स डेफिनेशन, ओके, हाउ टू क्रिएट दैट एंगल, देन यू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदरवाइज दैट इज डिफिकल्टी फॉर यू। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, ये एंगल का कॉन्सेप्ट है। अब होगा हमारा टाइप्स ऑफ एंगल, and types of angles are very easy. Types of angles. Types of angle. ये एंगल को हम साइड में रख रहे हैं। ओके, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि एंगल कैसे क्रिएट हो। फर्स्ट हम एंगल लेते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल। Acute angle means I think more of the students know about that acute angle because ये तो आपका commonly use होने वाला एंगल है। Okay, the angle value is between 0 and 90 degree. Between 0 and 90 degree, not a 0 degree or not a 90 degree. Between, that means 1 to 89 तक का अगर कोई आपको एंगल गिवन है, that means that angle, particular angle known as the acute angle. Word पर फोकस करो। Okay, जो वर्ड्स है वहां पर फोकस, बिटवीन वर्ड्स है, दैट मींस बिटवीन। सो द एंगल वैल्यू, ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री, तो ना तो आप 0 को कंसीडर करेंगे और ना तो ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे। दैट मींस आपका एंगल स्टार्ट होगा 1 डिग्री से 89 तक। ओके, अगर किसी भी एंगल का वैल्यू 1 डिग्री और 89 डिग्री
है, ओके, या तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या तो 85, 86, 87, 88, 89 डिग्री है, ओके, तो दैट एंगल नॉन एज द एक्यूट एंगल। क्लियर? सो डेफिनेशन, बिकॉज व्हाट्स पर फोकस करो, बिकॉज 0 डिग्री होगा, 0 तो डिग्री होगा नहीं, ओके, तो एंगल ही क्रिएट नहीं होगा, ओके, मींस दैट मींस इनिशियल स्टेज। अब इनिशियल स्टेज पर कोई भी रे होता है, दैट मींस वहां पर 0 डिग्री एंगल होता है, ओके, बट रे थोड़ा भी रोटेट करते हैं देन एंगल क्रिएट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ओके, तो एंगल आपका स्टार्टिंग होगा 1 डिग्री से। 90 को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ओके, अगर 90 को कंसीडर किया दैट मींस राइट एंगल, ओके, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, ओके, सो 1 एंड 89 के बिटवीन, सॉरी 1 होगा या तो 89 होगा, 88 होगा, व्हाटएवर। So the angles value is between 0 degree and 90 degree. The angle's value is between 0 degree and 90 degree. That angle known as acute angle. Acute angle. Clear? अब मैथमेटिकली अगर हम लिखे देन जो हमारा एंगल मींस थीटा, अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो भी एंगल होगा वो आपका थीटा होगा, ओके, सो जो थीटा का वैल्यू है, थीटा वो 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, ओके, फॉर एक्यूट एंगल। ये मैथमेटिक्स में कि हमारा जो थीटा मींस अब जो एंगल ये हमारा, चलो अब यहां पर एंगल आप शो करते हो, ओके, ए, यहां पर जो हमारा क्रिएट होगा वो होगा हमारा थीटा, ये हमारा थीटा है, ओके, और ये थीटा है वो आपका, ओके, तो ये 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉल वैल्यू होगा, बट 0 डिग्री से तो ग्रेटर, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला कि 0 डिग्री दैट मींस इनिशियल, तो वहां पर कोई भी एंगल नहीं होगा, तो 1 डिग्री तो 0 से ग्रेटर हुआ, तो हमारा जो थीटा है वो पर्टिकुलर हमारा जो ये थीटा है, ओके, ये आपके 0 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू होगा और 90 डिग्री से लेस वैल्यू होगा, ओके, 90 के इक्वल भी नहीं होगा या तो 90 से ग्रेटर भी नहीं होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल शो करेगा एक्यूट। क्लियर? सी, ये इनिशियल स्टेज है, दैट मींस 0 डिग्री, ओके, अब 0 डिग्री है दैट मींस नो एनी एंगल, बट चलो मान लो कि मेरा रोटेट हुआ ये रे, ओके, ये रोटेट हुआ, ओके, यहां तक रोटेट हुआ, दैट मींस यहां पर जो भी थीटा है, ओके, अगर ये होता है देन यू नो दिस इज अ राइट एंगल, तो ये आपका एक्यूट एंगल नहीं होगा, ओके, यहां तक कोई कंडीशन में आता है, ओके, 89 तक कोई अगर वैल्यू है दैट मींस वो आपका एक्यूट एंगल, बट जैसे ही 90 डिग्री हुआ दैट मींस वो कन्वर्ट हो जाएगा राइट एंगल में, ओके, तो एक्यूट एंगल के लिए जस्ट हम 89 तक ही एंगल को कंसीडर करेंगे, ओके, 90 को हम कंसीडर करेंगे नहीं, दैट मींस 0 डिग्री से आपका थीटा ग्रेटर होगा बट 90 डिग्री से वैल्यू उसका क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके, ये आपके मैथमेटिकली शो करेगा एक्यूट एंगल को। क्लियर? सो आई थिंक यू नो अबाउट यू क्लियर अबाउट द एक्यूट एंगल, ओके, सो सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट एंगल राइट एंगल। फर्स्ट हमारा एक्यूट एंगल था, सेकंड वन राइट एंगल। अब ये तो मैं उसके नेम से ही क्लियर है, ओके, राइट एंगल। अब राइट एंगल मींस द वैल्यू, द एंगल्स वैल्यू इज अ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ओके, अगर कोई एंगल पर्टिकुलर एग्जैक्ट 90 डिग्री शो करे दैट मींस दिस एंगल नोन एज द which angle, right angle, the angle value is
एग्जैक्ट, ओके वर्ड्स पर फोकस करो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ओके दैट एंगल known as right ओके तो जिसका 90 डिग्री एंगल होगा, अब ये तो सिंपल है ओके बिकॉज 90 डिग्री हम ऐसे शो करेंगे, मान लो कि ये मेरा ए पॉइंट है ओके और ये मान लो कि चलो बी भी है, सी भी होगी, तो ये जो आपका एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। क्लियर क्लियर, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, दैट मींस थीटा, यहां पर 90 डिग्री, दैट मींस हम शो करते हैं थीटा ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमारा एग्जैक्ट एंगल वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ना तो 90 से ग्रेटर हो तो ना तो 90 से स्मॉल, ओके एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट मींस राइट। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द राइट एंगल ओके। मान लो कि 89 तक हमारा रे रोटेट हुआ था ओके और फिर वो एग्जैक्ट वर्टिकली हो गया ओके लाइक दिस एल शेप ओके, एल शेप होता है ओके आपके जो 90 डिग्री क्रिएट करता है ओके एंगल, वो आपका एल शेप होता है। अब एल फिर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये एल ओके, ये भी एल है, ये भी एल है ओके, ये भी एल है, ये भी एल है ओके, कोई भी डायरेक्शन में, बट यहां पर 90 डिग्री 90 डिग्री तो 90 डिग्री सेम, दैट मींस दिस ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री ओके। सिंपली अगर हम देखिए ओके, चलो सिंपली अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे लाइन को, दिस वन ओके, हमने क्रॉस बनाया, दैट ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी एल है ओके, ये भी एल है दैट मींस 90 डिग्री, ये भी एल है दैट मींस 90 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ओके, जो कार्टेशियन प्लेन था वहां पर 360 डिग्री होता था ओके, 4 क्वाड्रेंट होते थे और ईच क्वाड्रेंट के बिटवीन जो एंगल होता था वो 90 डिग्री होता था ओके, बिकॉज़ एग्जैक्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है देन बिटवीन उनके एग्जैक्ट 90 डिग्री क्रिएट होता है ओके। एक लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन आपका वर्टिकल है, दैट मींस द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज अ 90 डिग्री। These things you know very well okay, so ये आपका right angle clear, so that means theta is equal to 90 degree, that means the angle known as the right angle, ये आपका acute angle clear। थर्ड एंगल, अब मैं यहाँ पर लिटिल बिट चेंजेस करूंगा ओके, आपको तो सेम वे लिखना है ओके। चलो यहाँ पर थर्ड वन ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड वन ऑब्ट्यूस एंगल ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल थर्ड वन है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ओके। द एंगल वैल्यू इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सी आपको नोटबुक में ऐसे चेंजेस नहीं करना ओके, आपको तो थर्ड नंबर पर ऑब्ट्यूस एंगल लिखना है, देन उसका डेफिनेशन लिखना ओके। द एंगल वैल्यू इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 80 डिग्री, दैट एंगल नोन एज अ ऑब्ट्यूस एंगल, दैट एंगल नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल। चलो यहां पर मैं चेंजेस कर देता हूं ओके। ये आपका रेखा okay, this one is our clear। ये जो एंगल है ये आपका थीटा, ये जो थीटा शो करता है ओके, ये आपका होगा x, ये जो आपका थीटा है वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, मींस ग्रेटर देन 90 ओके। तो ये जो आपका थीटा होगा ओके, दिस वन थीटा इज अ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री
लेस देन 180 डिग्री, तो ये होगा आपका विच एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर? द एंगल वैल्यू इज 90 डिग्री और 1, बिकॉज 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ओके, व्हाई? बिकॉज अगर 90 डिग्री हुआ तो पर्टिकुलर आपका विच एंगल? राइट एंगल। तो 90 से ग्रेटर, दैट मींस 91, 92, 93, 94, 95, व्हाटएवर, और लेस देन 180, लेस देन नॉट इक्वल टू 180। ओके, 180 हुआ तो वो डिफरेंट एंगल है। ओके, तो लेस देन मींस 179। तो कोई भी एंगल का वैल्यू अगर आपका 91 से 179 तक गिवन, आपको कोई भी एंगल का वैल्यू गिवन है, ओके, दैट पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज द ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? तो ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। चलो, यहां पर हमने देखा था, ओके, ये 90 डिग्री हमारा शो करता था, ओके, एग्जैक्ट एल शेप। अब 90 से ये वैल्यू ग्रेटर होता है, ओके, सी 91, 92, 93, 94, ओके, लाइक दिस। क्लियर? सी, ये आपका इनिशियल और आप एंगल यहां पर मेजर करो आप ये, तो ये जो आपका एंगल है वो पर्टिकुलर आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज द एंगल वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 एंड 180। अब 180 तो आपका एग्जैक्ट जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो आपका 180 शो करता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लाइक दिस, यहां तक होगा। ओके, तो ये पूरा एंगल होगा 179, 170, ओके, व्हाटएवर। तो 91 से 90 से ग्रेटर वैल्यू होगा और 180 से लेस वैल्यू होगा। ओके, तो वो एंगल होगा, वो आपका होगा पर्टिकुलर ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मींस थीटा इज greater than 90 degree and less than 180 degree. Clear? Because ये शो करा थीटा less than 180 degree और यहाँ पर 90 है, वो आपका थीटा से स्मॉल वैल्यू होगी। क्लियर? तो दिस वन इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, ओके, कि हाँ, ओके, 3 एंगल्स है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब हम नेक्स्ट वन एंगल, फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल, ओके, सिंपल है, ये भी राइट एंगल की तरह ही। ओके, मैं यहां पर चेंजेस कर रहा हूं, जस्ट स्ट्रेट एंगल। The angle value is exact. See, exact 90 degree, that means right angle. Exact 180 degree, that means straight angle. Straight means straight line. Okay, straight line होता है। Okay, तो 180 degree, that means always straight line. यहाँ पर हमारा changes होगा 180 degree. That angle known as the straight angle. Straight angle. Theta is equal to 180 degree. Theta is equal to 180 degree. अब यहाँ पर ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। चलो, तो ये आपका हो गया पूरा स्ट्रेट लाइन। ओके, और यहाँ पर जो पॉइंट था, ओके, तो ये जो पूरा एंगल है वो आपका है 180 डिग्री। क्लियर? तो होगा ये आपका विच एंगल? स्ट्रेट एंगल। Okay, so the angle value is exact 180 degree. That angle known as the straight angle. Clear? चलो, ये हमारा 90 डिग्री था राइट एंगल, ये हमने डिस्कस किया। ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, थर्ड वन हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब फोर्थ वन हमारा है स्ट्रेट एंगल। अब ये एंगल ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, दैट मींस अब देखो ये एग्जैक्ट आपका शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन, मींस द एंगल वैल्यू इज इक्वल टू 180। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल वैल्यू होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। ओके, तो अगर कोई भी एंगल का आपको वैल्यू आपको गिवन है कि 180 डिग्री, दैट मींस दैट एंगल नोन एज द स्ट्रेट एंगल। ओके, और वहां पर स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट होगा। ओके, मान लो कि ये अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, देन आपको क्लैरिफाई होगा। ओके, कि अगर 180 होता है दैट मींस वहां पर स्ट्रेट लाइन
क्रिएट होगी। ओके, कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है बट स्ट्रेट लाइन वहां पर होगी। क्लियर? तो ये था हमारा इनिशियल स्टेज, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, ये हमारा राइट एंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल और ये हमारा फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल। क्लियर? नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल, मैं तो लिटिल बिट चेंजेस करूंगा। ओके, आपको तो अगेन लिखना है। सो और फिफ्थ एंगल is a reflex angle. Very beautiful name, huh? Reflex angle. एक आपने नोट किया कि यहां पर जो ऑड नंबर पर एंगल आ रहे हैं उनके वैल्यू बिटवीन आ रहे हैं। ओके, और जो इवन नंबर पर आपके जो एंगल आ रहे हैं, ओके, वो सारे एग्जैक्ट वैल्यू पर शो करे। ओके, तो ये भी थोड़ा माइंड रखना। ओके, सो फर्स्ट वन हमारा एक्यूट था जो 0 और 90 के बिटवीन था। थर्ड वन था हमारा ऑब्ट्यूस जो था 90 और 180 के बिटवीन, जो थर्ड नंबर का एंगल था। और फिफ्थ नंबर का जो एंगल है वो हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, लास्ट तक हमने कहां पर छोड़ा था? 180। तो 180 से स्टार्ट होगा। द एंगल वैल्यू इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। सिंपल। द एंगल वैल्यू इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, कोई भी एंगल का 180 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल का बिटवीन वैल्यू, दैट मींस एंगल नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो यहां पर भी थोड़ा चेंजेस होगा। तो हमारा जो थीटा है वो हमारा होगा 180 से ग्रेटर होगा बट 360 से लेस देन वैल्यू। क्लियर? सो अब चेंजेस करेंगे। रिफ्लेक्स। अब यहां तक हमने ऑब्ट्यूस किया था। ओके, स्ट्रेट लाइन हमारा। अब ये थोड़ा समझना। ओके, लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो हमारा था स्ट्रेट था। ओके, अब हमारा रे यहां तक आया। ओके, अब रे हमारा यहां तक ऐसे मूव करता है। ओके, दैट मींस आपका ये शेप हो। अब ये बोलोगे कि ये तो आपका एक्यूट एंगल बिकॉज लेस देन 90। यस, दिस इज अ लेस देन 90, बट हमने मेजर यहां से किया था तो ये फुल आपका जो लेंथ है, ओके, यहां से यहां तक का ये होता है आपका विच एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नो डाउट ये आपका रिफ्लेक्स है तो इनसाइड जो होगा वो आपका एक्यूट एंगल ही होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, बट हमने मेजर किया था, आप जो डायरेक्शन से मेजर करें। ओके, हमने एंगल यहां से मेजर किया था, ये डायरेक्शन से। ओके, यहां से तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और यहां पर हमारा 270 डिग्री और दिस वन हमारा होगा पूरा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ओके, तो हमने एंगल यहां से मेजर किया था। ओके, तो ये हमारा वैल्यू ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ये 180 डिग्री, तो ये 180 से क्या होगा? ग्रेटर, मींस 360 डिग्री से स्मॉल बट जो 180 उससे तो क्या होगा? ग्रेटर। ओके, तो यहां तक तो 180 डिग्री था बट ये वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ, दैट मींस ये एंगल आप पूरा देखेंगे। ओके, तो ये एंगल था, यहां पर अगर आता तो 90 डिग्री, ये तो आपको पता है, यहां तक तो आया था 180 डिग्री, तो मान लो कि ये रे आपका यहां तक आता है। ओके, ये रे आपका यहां। क्लियर? तो ये जो पूरा एंगल है, दिस थीटा, ओके, ये जो पूरा आउटसाइड थीटा, ओके, नॉट इनसाइड, बिकॉज ये तो आपका होगा एक्यूट एंगल बिकॉज लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो पूरा आपका थीटा है, ओके, बिकॉज हमने आउटसाइड से मेजर किया है।
वी मेजर्ड एट द आउटसाइड, दैट मींस ये जो थीटा है वो आपका 180 से तो ग्रेटर होगा, व्हाई? बिकॉज़ 180 तक तो हमारा विच एंगल था? स्ट्रेट एंगल, ओके? तो स्ट्रेट एंगल तक तो था, बट ये हमारा एंगल इंक्रीज हुआ, दैट मींस 180 से हमारा ग्रेटर वैल्यू है, दैट मींस ये आपका जो थीटा होगा विच एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, ओके? सो पर्टिकुलर दैट एंगल वैल्यू इज बिटवीन द 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, दैट एंगल नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? तो ये जो हमारा इनिशियल स्टेज था, अब अगेन इनिशियल स्टेज ये हम एक्यूट एंगल बनाते हैं कि एक्यूट, ओके, राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूस, ओके, ऑब्ट्यूस, देन स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, ओके? यहां तक हमारा है फिफ्थ वन हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ओके? कि अगर आपका एंगल का जो वैल्यू वो 180 और 360 डिग्री के बिटवीन हो, देन वो आपका एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। बट अगर किसी एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री हो तो सिक्स्थ वन नहीं है, ओके? सिक्स्थ वन, ओके? स्ट्रेट कॉम, बिकॉज सी 360 दैट मींस कंप्लीट एक सर्कल होगा, ओके? कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट वर्ड से हमारा जो सिक्स्थ वन जो एंगल है वो हमारा होगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कंप्लीट, ओके? सो ये कंप्लीट एंगल, ओके? तो द एंगल वैल्यू इज एग्जैक्ट 360 डिग्री, the angle value is exact 360 degree, that angle known as the complete angle, that angle known as the complete angle, that means theta is equal to 360 degree, theta is equal to 360 degree, okay? तो ये होगा आपका complete angle, कंप्लीट एंगल, ओके? और 360 डिग्री होता है, दैट मींस द टू रे आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब जहां पर से आपका रे ने स्टार्ट किया इनिशियल, ओके, वहां पर एक फाइनल पोजीशन पर गया, दैट मींस 360 डिग्री रोटेट हुआ, ओके? चलो, तो लेट सपोज मान लो कि हमारा रे था दिस वन रे, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट था ए, ये आपका मान लो कि रे यहां तक आया, ओके? 90 डिग्री बना है, देन 180 डिग्री बना है, ओके? देन ये 270 डिग्री आया, ओके? और लास्ट कंडीशन में आपका रे यहां पर आ गया, ओके? दैट मींस यहां से स्टार्ट किया, ओके? और ये जो पूरा एंगल है, ओके, इनिशियल स्टेज पर आया, तो ये जो थीटा है वो आपका 360 डिग्री, ओके? 360 डिग्री में तो आप इजीली समझ पाओगे, ओके? अगर थीटा आपका 360 डिग्री हो रहा है, दैट मींस व्हिच एंगल? कंप्लीट एंगल, क्लियर? कि अगर आपका पर्टिकुलर एक रे इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है, ओके, और रोटेट होता है, और अगेन इनिशियल स्टेज पर कोइंसिडेंट होता है, दैट मींस द पर्टिकुलर एंगल वैल्यू इज 360 डिग्री, दैट मींस एग्जैक्ट 360 डिग्री, ओके? सो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर इनिशियल रे, ओके? ये हमारा इनिशियल रे, ओके? अब इनिशियल रे, ओके, अब इनिशियल रे हमारा रोटेट होता है, ओके? अगेन अब एंगल को रिवाइज करो, ओके? एक्यूट एंगल, और ये हमारा राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूस एंगल, और ये हमारा स्ट्रेट एंगल, ओके? देन अब वैल्यू जो होगा वो आपका 180 से ग्रेटर होगा, दैट मींस व्हिच एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, और ये हमारा एग्जैक्ट कोइंसिडेंट हुआ, दैट मींस कंप्लीट एंगल, दैट मींस व्हिच वैल्यू? 360 डिग्री, क्लियर? सो ये हमारे 6 टाइप ऑफ एंगल कंप्लीट नहीं, ओके? अभी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, दैट मींस एंगल कंप्लीट नहीं, ओके? अभी 7 एंगल है, 8 वन है, 9 वन है, ओके? 10 वन है, 11 12 12 वन, सारे एंगल अभी रिमेनिंग है, ओके? बट ये तो जस्ट एंगल का नेम है कंप्लीट एंगल, ओके? कि ये मत सोचना कि कंप्लीट एंगल है, दैट मींस यहाँ पर लास्ट वन एंगल होगा, ओके? अभी एंगल बाकी, पिक्चर अभी बाकी, ओके? चलो,
अब 7th वन हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। ओके बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके टाइप्स ऑफ एंगल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब 7 अब ये मैं सारा इरेज कर देता हूं। ओके बिकॉज यहां से जो थोड़ा पोर्शन है वो एंगल का है। ओके बट थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका डिफरेंट है। सो ये तो आपके इंडिविजुअल एंगल्स है। ओके अब थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का होगा। ओके देन एडजेसेंट एंगल हो गए, देन वर्टिकल एंगल हो गए। ओके वो सारे हम डिस्कस करेंगे, सिंपल है शॉर्ट में। ओके ओके लास्ट वन हमारा 6th नंबर का एंगल था। अब हमारा 7th नंबर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सिंपल, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल, द सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू sum of two angles is 90 degree. The sum of two angles is 90 degree. That angles known as complementary एंगल्स। ओके किसी भी दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है पर्टिकुलरली, ओके तो वो एंगल होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सी, अब ये ड्रॉ किया, दैट मींस आपको क्लियर है कि ये तो 90 डिग्री, ओके ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री, बट टू एंगल हो गए। ओके यहां पर तो एक ही एंगल गिवन है, तो मान लो कि ये मैंने रेड ड्रॉ किया, क्लियर, ठीक ये एंगल हो रहा है आपका, मान लो कि इसको एंगल हम 1 बोले, और ये एंगल हो रहा है आपका 2। सुसी ये आपका, अब रे के अकॉर्डिंग हम बात करें। ओके ये हमारा रे एक्स पोजीशन पर था, अब y पोजीशन पर आया, दैट मींस ये, और ये हमारा z पोजीशन पर। अब x एंड z को देखो, एक ही रे हमारा, ओके यही रे था, ओके यहां पर आया और यहां पर। अब ये एग्जैक्ट कितना डिग्री हो रहा है? ओके 90 डिग्री। ओके वन टाइम वहां पर स्टॉप हुआ, तो एक तो यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा और एक यहां पर, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको भी एंगल 1 बोल सकते हैं, इसको भी एंगल 2। ओके बट जो बिटवीन हमारा इनिशियल और फाइनल रेट जब होगा, तो बिटवीन अगर 90 डिग्री हो रहा है, ओके टू एंगल का सम, दैट मींस पर्टिकुलर एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 है और एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 है। ओके अब किसी अगर मान लो कि आपको कोई वैल्यू पर्टिकुलर गिवन है, ओके तो बोले कि मान लो कि एक एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है, the one angle is a 40 degree, then what is the complementary angle of 40 degree? बोलो। ओके सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट, आपको वर्ड्स में बोला कि एक जो आपको एंगल गिवन है, मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है, ओके और यहां पर आपका जो एंगल गिवन है, ओके ये एंगल आपको बोला है कि 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ओके अब यहां पर से आपको ये डायग्राम ही गिवन है, ओके और कोई नहीं गिवन, और ये मान लो कि यहां पर आपको x गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो एक एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है, ये आपका मान लो कि पॉइंट, ओके वर्टेक्स पॉइंट A, तो यहां से आपका रे स्टार्ट होता है एंड यहां पर होता है। अब एग्जैक्ट आप करेंगे तो ये आपका पर्टिकुलर बीच शेप है, L शेप है। कौन सा शेप है? L शेप। अब L शेप जब भी आपके माइंड में आए, देन आपके माइंड में आना चाहिए राइट एंगल।
विच एंगल? राइट एंगल. व्हाई? बिकॉज जब एग्जैक्ट एंगल अगर आपका 90 डिग्री होता है, दैट पर्टिकुलर एंगल नॉन एज द राइट एंगल. सो राइट एंगल, तो ये राइट एंगल. अब राइट एंगल है, दैट मींस आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पर एंगल 90 डिग्री होगा. दैट्स क्लियर. ओके, एक एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है. आपको राइट एंगल तो यहां पर एल हो रहा है, दैट मींस 90 डिग्री होगा. ये तो आपको क्लैरिटी. एक एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, तो 40 में मैं कितने ऐड करूं तो 90 डिग्री होगा. मींस हमारा सेकंड वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री. दैट मींस x इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्लियर. तो अगर आपको एक एंगल वैल्यू गिवन है तो आप उस पर से दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपली फाइंड कर सकते हैं. ओके, बिकॉज सिंपली आपको दोनों का एडिशन 90 होना है. अदरवाइज आपको जो भी एंगल गिवन है, जो भी एंगल वैल्यू गिवन है, उसको सिंपली 90 डिग्री में से माइनस करो, तो ये होगा आपका 50 डिग्री. दैट मींस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री. ओके, 50 डिग्री वो आपके 40 डिग्री का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. या तो आप 40 डिग्री को बोल सकते हैं 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्लियर. सो दिस वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिंपल है. द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. अगर कोई भी दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है, ओके, दैट मींस आपका जो एंगल होगा वो क्लियर, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहां पर हमने डायग्राम दिया एंगल 1 और एंगल 2, उनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा फुल एंगल होगा, और ये जो फुल एंगल है वो हमारा होगा 90 डिग्री. ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्लियर. सेम इसके जैसा ही एक आपका 8 नंबर का जो एंगल है वो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल. यहां पर मैं x फाइंड कर रहा था. ओके, तो x का हमने वैल्यू लिया 50 डिग्री. ओके, जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको जस्ट सिंपली 90 में से माइनस करो. दैट मींस ये आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 7th वन, देन 8th वन, सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री. अब एग्जाम में जो लिखते हैं वो सप्लीमेंट्री नहीं. ओके, सप्लीमेंट्री. जस्ट इसका थोड़ा चेंजेस है. ओके, द सम ऑफ टू एंगल, यहां पर 90 डिग्री तो यहां पर होगा 180 डिग्री. बस, कोई और चेंज नहीं. द सम ऑफ टू angles is 180 degree. That angle known as supplementary angles. The sum of two angles is a 180 degree. अगर 90 डिग्री होता है that means complementary angle, और supplementary angle that means 180 डिग्री. means दोनों जो रे है, ओके, ये आपका रे, ओके, दोनों को मिलाकर आपका एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. शॉर्ट में अगर बोले तो यही कॉन्सेप्ट है. ओके, उसका लेट्स सपोज ये आपका रे यहां तक एक रे आया आपका, ओके, और यहां तक x y z. तो ये एक एंगल है आपका और ये एक एंगल. ओके, अब दोनों को अगर ये मिलाएंगे, ओके, ये आपका मान लो θ1 है और ये आपका θ2. तो θ1 एंड θ2, तो ये जो पूरा एंगल है वो आपका होगा 180 डिग्री. दैट मींस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. होना ही चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल ये तो स्ट्रेट है. मान लो कि ये आपको जो वैल्यू गिवन है और ये एंगल का वैल्यू, ओके, मान लो कि ये आपको 110 गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. ये आपको 180 डिग्री आपको पता है कि
पूरा जो हमारा एंगल है वो हमारा होगा 180 डिग्री। ये एंगल आपको गिवन है 110, देन ये एंगल कितना होगा? सिंपली 180 डिग्री माइनस 110, दैट मींस 70 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर? सो सप्लीमेंट्री एंगल मींस द एंगल सम, चलो यहां पर ऐसे होगा, ओके। सी, ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओके, वो आपके इस डायरेक्शन में ये टाइप से हो सकते हैं, ओके। ये आपका एंगल और ये एंगल मिलाकर बोल रहा है पूरा 90 डिग्री, ओके, दैट मींस आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। यहां से ये आपका ये टाइप का मूव नहीं होगा, ओके। जो आपका रे का इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज आपका वर्टिकली एग्जैक्ट होगा, ओके। यहां से ये थोड़ा भी ऐसे होगा नहीं, ओके। अगर ऐसे हुआ दैट मींस ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 हो गया, ओके, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं, ओके। देन सिंपली अगर ये शेप में, ओके, आपका ये जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वो आपका फाइनल स्टेज, तो ये आपका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर भी हो सकता है, ओके। तो ये पर्टिकुलर एंगल, बट दोनों एंगल का जो एडिशन है वो आपका होगा 90 डिग्री होगा, ओके। तो पर्टिकुलर जो आपके एंगल होंगे वो हो गया आपके पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जो हमारा सेकंड 8th एग्जांपल है, ओके, हमारा टर्म से वो है सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक तो आपका इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल को हम ज्वाइन करेंगे तो एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहां पर आपका ये जो एंगल है, ओके, पर्टिकुलर, ओके, चलो यहां पर 180 मींस स्ट्रेट लाइन, ओके, 180 मींस स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे हो सकता है, ओके, यहां पर भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, ये आपका रोटेट ऐसे भी कर सकता है, ओके, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये कंडीशन में भी हो सकता है, ओके, ये कंडीशन में भी हो सकता है, क्लियर, ये कंडीशन भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो, बट आपका जो इनिशियल रे हो वो फाइनल रे के साथ स्ट्रेट लाइन होना ही चाहिए, ओके, बिकॉज 180 डिग्री मींस स्ट्रेट लाइन। ये तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके, माइंड में। तो θ1 और θ2 आपके 180 होंगे, ओके। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक एंगल गिवन है, ये आपके 1 मार्क्स में हो सकता है, ओके, कि कोई एंगल आपको गिवन है पर्टिकुलर एक वैल्यू, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है दैट मींस सम 90 डिग्री होगा, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है दैट मींस सम आपका होगा 180 डिग्री। क्लियर? सो ये थे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वन, ओके, 7th और 8th में कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगा, ओके। सिंपल लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन किया, ओके। और आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर एक वैल्यू गिवन है देन उसको सिंपली अगर 90 में से अगर माइनस करेंगे तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होगा, ओके। और सप्लीमेंट्री में जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप 180 में से माइनस करेंगे देन आपको रिमेनिंग एंगल मिलेगा, ओके, क्लियर। सो ये थे आपके 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ 9th वन एग्जांपल, 9th वन एंगल, ओके। अब बोलोगे कि इतने एंगल कहां से आए, ओके, है ही ऑलरेडी, ओके। सो टाइप नंबर 9, टाइप्स ऑफ एंगल में टाइप्स हमारा 9th वन है, वो है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ओके। अब एडजेसेंट एंगल का क्या स्टोरी है? सिंपल है, ओके। फर्स्ट ये तो आपको वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। एडजेसेंट मींस, एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? एडजेसेंट मींस नियर, पास वाला, पड़ोसी, ओके, नेबर, ओके। एडजेसेंट एंगल्स मींस ये जो एंगल्स होंगे वो आपके होंगे नेबर, ओके, मींस नियर, एक दूसरे के नियर एंगल्स होंगे, ओके। एडजेसेंट एंगल्स, चलो फर्स्ट उसका डेफिनेशन,
two angles are adjacent. Two angles are adjacent. They have common vertex. Common arms and one arm, and the remaining two arms are opposite. रिमेनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये भी डेफिनेशन है तो मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा. रिमेनिंग टू आर्म्स आर ऑपोजिट ऑफ कॉमन. ओके, ओके, remaining two arms are opposite side यहाँ पर side, ओके, of common. अब ये डेफिनेशन है कि पर्टिकुलर आपकी जो एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट एंगल है कि इसके लिए यहाँ पर टू एंगल्स आर एडजेसेंट, कि कोई अगर दोनों एंगल आपके अगर एडजेसेंट एंगल है तो उनके लिए थ्री कंडीशन है. ओके, थ्री कंडीशन में ये मेरा डेफिनेशन कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स. अब वर्टेक्स क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट करते हैं, ओके, जो उनका पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है. ओके, तो एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. क्लियर है कि कॉमन वर्टेक्स, चलो हमारा फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड वन, कॉमन आर्म्स भी होना चाहिए. एक आर्म्स हमारा कॉमन होना चाहिए, कॉमन आर्म. ओके, थर्ड वन, remaining two arms, so two arms are opposite side of common arm. ओके, समझ में आया? आई थिंक नहीं आएगा. ओके, ये मतलब स्टोरी के एडजेसेंट एंगल. चलो अब फुल्ली हम विथ डायग्राम हम एक्सप्लेन करूंगा. ओके, मैं अब एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मींस नियर बोले, नेबर बोले. ओके, पास के एंगल जो भी है उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. मींस यहां पर टू एंगल्स होंगे. ओके, बिकॉज़ हम किसी को हमारा नेबर कैसे कह सकते हैं. ओके, अगर वो हमारे घर के साइड में रह रहा है, ओके, हमारे एग्जैक्ट नियर में रह रहा है, दैट मींस बोलेंगे कि दिस इज आवर नेबर. ओके, दिस इज आवर नेबर. तो एडजेसेंट में टू एंगल होंगे. अब टू गिवन एंगल आपके एडजेसेंट एंगल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आपके पास थ्री कंडीशन आपको गिवन है कि अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दैट मींस द गिवन पर्टिकुलर एंगल इज अ एडजेसेंट एंगल, अदरवाइज गिवन टू एंगल इज अ नो एडजेसेंट एंगल. तो थ्री कंडीशन में तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और टू आर्म्स आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म है उसके टू ऑपोजिट साइड. ओके, अब थियोरेटिकल में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. अब कमिंग विद डायग्राम, चलो एक डायग्राम में बनाता हूं. ओके, चलो ये एक डायग्राम. ये जो मेरा ये सारे यहां पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ए. मान लो कि ये x, ये आपका y और ये आपका z. क्लियर? अब ax को देखो, ax आपका एक रे. ओके, ay भी क्या है, रे, और az भी क्या है, रे. ओके, तो सी तीनों रे के लिए एक आपका कॉमन पॉइंट है कि नहीं? सी कॉमन पॉइंट है कि नहीं? विच वन? ए. फर्स्ट कंडीशन,
टू एंगल्स आर एडजेसेंट, अगर कोई दो एंगल आपके अगर एडजेसेंट एंगल है, दैट मींस थ्री कंडीशन में तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यस, दिस ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो चलो यहां पर मेंशन करते हैं कॉमन वर्टेक्स सिंपली। ओके, कॉमन आर्म, अब यहां पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ओके, चलो विच टू एंगल, एक ये एंगल आपका, ये एंगल, ओके, जिसको मैं नेम दूं एंगल 1, एंगल 1। सेकंड वाला एंगल ये एंगल आपका, क्लियर। अब उसको मैथमेटिकल एलिमेंट में हम लिखे तो एंगल ZAY, एंगल ZAY, ZAY इज इक्वल टू हमारा एंगल है 1, और सेकंड वन हमारा y, सॉरी या तो x a y भी बोल सकते हो, YAX इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। ये वैल्यू नहीं, ओके, ये हमने एंगल 1 एंड 2 शो किया। ओके, ये एंगल है आपका एंगल 1 एंड एंगल 2। चलो टू एंगल तो क्रिएट हुए। कॉमन आर्म्स तो सिर्फ AY आपका दोनों के लिए कॉमन आर्म्स है, y सी ZAY, तो ZAY ये भी लाइन है। ओके, यहां से मैंने किया तो YAX, तो ये आपका कॉमन है, तो ये आपका कॉमन आर्म्स है। ओके, ये तीनों आपके आर्म्स ही, ओके, बट सी AY इज अ कॉमन आर्म, दिख रहा है आपको क्लियर। ये एंगल के लिए भी AY बेस है, ये एंगल के लिए भी AY। ओके, दैट मींस AY इज अ कॉमन आर्म। यहां पर हम लिखेंगे, ओके, शॉर्ट में कि AY इज कॉमन आर्म। ओके, AY इज अ कॉमन आर्म, यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हुआ। सेकंड में अब टू आर्म्स आर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। चलो कॉमन आर्म्स को पकड़ो, ये हमारा कॉमन आर्म्स। अब टू हमारे देखो टोटल हमारे जो एडजेसेंट एंगल होंगे वहां पर कितने आर्म्स होंगे, टोटल 3 आर्म्स। तो एक तो हमारा कॉमन हुआ दोनों एंगल के लिए, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 आर्म। अब 2 आर्म्स होंगे वो आपके जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। चलो ये इसके ऑपोजिट साइड पर है कि नहीं, ये भी उसके ऑपोजिट साइड पर है कि नहीं, यस दैट मींस करेक्ट। तो ये हमारे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर कि कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड आपके आर्म्स है कि नहीं। थर्ड वन, 2 आर्म्स आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर है कि नहीं, ऊपर तरफ एक नीचे तरफ, दैट मींस ये आपका थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। यहां तक क्लियर है। सो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर। सो यहां तक क्लियर होगा। एडजेसेंट एंगल मींस जो नियर एंगल होते हैं, ओके, तो उनका डेफिनेशन है कि अगर कोई टू एंगल अगर एडजेसेंट एंगल है तो वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ओके, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे दैट मींस दोस एंगल्स इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा 3 आर्म्स थे। ओके, तो ये एक हमारा आर्म्स, ओके, यहां पर 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। एक एंगल हमारा ZAY जो हमारा एंगल 1 है, और एक YAX जो हमारा एंगल नंबर 2। सी यहां पर एक कॉमन आर्म है AY हमारा कॉमन आर्म है, कॉमन है वर्टेक्स भी है A। ओके, देन जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड आपके एक आर्म से, दैट मींस ऑपोजिट साइड, एक ऊपर तरफ एक नीचे तरफ, दैट मींस ये भी थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। ओके, दैट मींस फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉलो हो रहा है। दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर। तो ये था हमारा एडजेसेंट एंगल। ओके, सो एनी डाउट इन एडजेसेंट एंगल। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट मींस आपको मोर क्लैरिटी होगी। ओके, अब ये डायरेक्शन में नहीं, कोई भी डायरेक्शन में हो सकते। ओके, तो एडजेसेंट एंगल का मान लो कि एक चलो ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, हाउ टू चेक। ओके, ये हमारा कॉमन पॉइंट, बिकॉज़ ये हमारा यहां से स्टार्ट होगा, ये ओके, ये अपने वर्टेक्स पॉइंट। चलो
चेंज करते हैं, पी नाम लेते हैं। ओके, ए को अकेले को चांस दे। ओके, पी, पी हमारा कॉमन वर्टेक्स। ओके, चलो एक एंगल, विच एंगल, मान लो कि यहां पर हम नेमिंग देते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक एंगल हमारा होगा वाई पी जेड, तो हम उसको बोलते हैं एंगल 1। ओके, एक अदर एंगल होगा वाई पी एक्स, तो ये हमारा एंगल होगा सेकंड वन एंगल। क्लियर? चलो अब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है, दैट मींस ओके कि वर्टेक्स पॉइंट गिवन है आपको एक। ओके, देन सेकंड वन आपका कंडीशन है कि कॉमन आर्म्स। यस, जो आपका py है वो कॉमन आर्म, ये एंगल के लिए भी py कंसीडर हो रहा है और एंगल 2 के लिए भी py, दैट मींस सेकंड। ओके, और जो कॉमन आर्म्स है उसके ऑपोजिट साइड, एक ये साइड और ये साइड, दो आर्म्स है कि नहीं? यस, ये आर्म्स है। ओके, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर? तो ये था आपका एडजेसेंट एंगल। ओके, क्लियर? और एडजेसेंट के लिए थोड़ा डिटेल भी। ओके, अब 10th है, वो 10th वन हमारा एंगल है। ओके, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो आई थिंक यू क्लियर अबाउट द एडजेसेंट एंगल। ओके, now 10th one. Okay, our 10th one सिंपल है एंगल, ट्राई करो, थोड़ा समझोगे तो इजी है। डायग्राम के थ्रू, ज्योमेट्री का एक होता है कि विथ डायग्राम जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे दैट इज इजी। ओके, वर्ड्स फॉर्म में आपको क्लैरिटी थोड़ा कम आती है। ओके, बट अगर विथ डायग्राम होगा देन मोर क्लैरिटी आएगी आपको। आई वांट टू चॉक मोर स्मॉल चॉक्स मेरे पास। चलो, सो 9 तक कंप्लीट हमारा 10th एंगल है। ओके, 10th 11। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये तो सिंपल, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर मींस लाइन और स्ट्रेट लाइन। ओके, अब स्ट्रेट लाइन माइंड में आए देन एंगल, स्ट्रेट लाइन से एंगल कौन सा था? यस, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल दैट मींस हाउ मच विल यू 180 डिग्री। बस हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल दैट मींस द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। द सम, ये 99% मैच करता है आपके सप्लीमेंट्री एंगल के साथ, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल में क्या कॉन्सेप्ट था? द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो सेम, कोई चेंजेस नहीं। ओके, जस्ट नेम डिफरेंट दिया। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। ओके, यहां पर जस्ट वर्ड यूज किया है एडजेसेंट एंगल। तो the sum of the sum, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो रहा है तो उसको पर्टिकुलर बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर मींस लाइन, लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। ओके, अब स्ट्रेट लाइन मींस एंगल वैल्यू इज 180 डिग्री, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, दैट मींस स्ट्रेट एंगल। ओके, तो लीनियर का मीनिंग होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, the sum of 180 degree of any okay, the sum of two adjacent, the sum of two adjacent angles is 180 degree. The sum of two adjacent angle is 180 degree. That angles known as बोलो which angle? Simply linear pair of angles. Look, simple है. For example,
सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलने से पहले कंफर्म करो कि गिवन आपके एडजेसेंट एंगल है कि नहीं. ओके, अगर एडजेसेंट एंगल है देन नो प्रॉब्लम, देन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम. ओके, आर ये अब 3 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए. ओके, कि जो एक एंगल है आपको, ये एंगल आपका फर्स्ट वन, ओके, ये एंगल आपका 1 और ये एंगल नंबर 2. चलो देन x y z, x y z. अब y r x एंगल 1 हो रहा है, y r z एंगल नंबर 2. चलो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट r. ओके यस, बिकॉज r z r y r x. चलो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट, चलो एक साइड ही करो. ओके, सेकंड वन कॉमन आर्म्स. यस, r y इज अ कॉमन, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल के लिए एक आपका कॉमन वॉल क्या है, r y, दैट मींस r y इज अ कॉमन आर्म. ओके, चलो 2b फॉलो हो रहा है. थर्ड वन, जो एंगल आपके क्रिएट हो रहे हैं, ओके, तो जो कॉमन आर्म्स है उसके ऑपोजिट साइड आपके 2 आर्म्स है कि नहीं, चेक करो. यस, rz भी ry के ऑपोजिट है और ऑपोजिट 2 साइड पर होने चाहिए. ओके, दैट मींस 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हो, दैट मींस करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके, सो एंगल 1 एंड एंगल r है एडजेसेंट एंगल. ओके, एडजेसेंट एंगल. अब सी ये आपका इनिशियल और ये जो पूरा एंगल होगा ये सेमी सर्कल होगा कि नहीं, दैट मींस सेमी सर्कल मींस 180 डिग्री. दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 are linear pair of angles, linear pair of angles. अब शॉर्ट में बोलूं ना तो जो भी एंगल आपके एडजेसेंट एंगल है वो आपके पेयर ऑफ एंगल्स हो गए. ओके, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. क्लियर? ओके, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं. ओके, बिकॉज ये तो 90 डिग्री. ओके, एग्जैक्ट एंगल कितना होगा, सॉरी, ये कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ए. ओके, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ए, तो ये दोनों का एडिशन तो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा. ये एंगल आपका 1, ये एंगल आपका 2. ओके, एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करें देन हमारा होगा 90 डिग्री. अब ये आपके एडजेसेंट एंगल तो है. ओके, एडजेसेंट एंगल तो कंफर्म है. व्हाई? कॉमन पॉइंट वर्टेक्स ए, ये आपको x y एंड z, ये आपका एक कॉमन, ये एंगल के लिए ये और ये एंगल के लिए ये 1. ओके, तो ये एंगल्स और ये एंगल के लिए सेम है. ओके, और ये दोनों ऑपोजिट साइड है, दैट मींस आपके थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रहा है कि कॉमन आर्म्स के 2 ऑपोजिट साइड है, दैट मींस ये भी आपके एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल. बट अगर एडजेसेंट एंगल जो भी 2 एंगल है, ओके, तो ऐसा नहीं कि कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल का आपका सम 180 डिग्री, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, बट अगर इन केस द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, दैट मींस द पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये स्पेशल इसको स्पेशल नेम क्यों दिया, बिकॉज ये कंडीशन अगर 180 डिग्री पर होता है. ओके, अगर यहां पर 90 डिग्री है तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ओके, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो अगर एडजेसेंट एंगल आपके अगर सप्लीमेंट्री एंगल है दैट मींस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्लियर? तो ये था हमारा 10th वन एंगल. अब 11 वर्टिकली opposite angles. Okay, so I have no more chalk. Okay, small chalks, but no problem. Okay, because ये हमारा last one. Okay, अभी तो बाकी है corresponding angle है, बहुत एंगल. So 11th number, vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. ये क्या नया खेल है? ओके, वर्टिकली सिंपल है. सी vertically opposite angle, word by word. Vertical means
वर्टिकल मीन्स रिकॉल करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये टाइप से आपका कोई लाइन है दैट मींस हॉरिजॉन्टल, और अगर ये टाइप से आपका कोई लाइन है दैट मींस वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन आपकी 90 डिग्री पर होगा। ओके, चलो एक तो वर्टिकल, देन ऑपोजिट, ऑपोजिट मींस लेफ्ट का ऑपोजिट राइट। ओके, चलो लेफ्ट है तो लेफ्ट का ऑपोजिट होगा राइट। क्लियर? गुड, गुड का ऑपोजिट बैड, बैड, बीएडी या बीएडी, बैड। ओके, बैड, बैड। ओके, ओरिजिनल का, ओरिजिनल का ऑपोजिट, एक स्टूडेंट ने बोला था चाइना, ओरिजिनल का ऑपोजिट चाइना, बिकॉज चाइना की जो सारी चीजें होती है वो फेक होती है। ओके, कोई भी होता है, ओरिजिनल होती है। ओके, एक बार न्यूज में था, किसी ने बोला किसी एज पर्सन को कि कल तो हमारे देश में चाइना के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। ओके, तो वो बोला कि ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे, मींस चाइना को बोलते हैं फेक, ओरिजिनल का ऑपोजिट होगा चाइना। ओके, मैड इन चाइना। ओके, सो लास्ट वन, अवर angle is a vertical angle. See, when two lines are intersecting, when two lines are intersecting each other at one point, one specific when two lines are intersecting each other at one specific point, okay, then the formation, the created angles are known as vertically opposite angles। स्टोरी समझ में आई? When two lines are intersecting each other at one specific point, then the created angles are known as vertically opposite angle. Okay, no problem. चलो, so two lines तो ड्रॉ करें। चलो, ये हमारा है। चलो, अब टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, क्लियर? और इंटर स्पेसिफिक पॉइंट मान लो कि ओ पॉइंट पर आपका टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यहां पर से कितने एंगल क्रिएट हो रहे हैं? 4 एंगल। चलो, तो यहां पर एक नेमिंग कर दें हम, एंगल 1। ओके, यहां पर अगर हम करें तो एंगल नंबर 2, यहां पर हम अगर करें तो एंगल नंबर 3, और यहां पर अगर हम करें तो एंगल नंबर, क्लियर? 4 के 4 डिफरेंट एंगल है। ओके, तो सी तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इज अ 4 एंगल। सो यहां पर जो वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे वर्टिकली, ओके, बिकॉज़ टू लाइन को इंटरसेक्ट किया तभी आपका एंगल क्रिएट हो। ओके, तो ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? चलो, 1 का ऑपोजिट एंगल 3, 2 का ऑपोजिट 4,
सी अब जो 1 है वो 2 का क्या है, एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल, ओके, तो एक दूसरे को एडजेसेंट, बट ऑपोजिट क्या होगा, 1 and 3 and 2 and 4, so 1 and angle 3 are vertically, angle 1 and 3, okay, and also angle 2 and 4 are vertically opposite angle. तो यहां पर हम लिखेंगे from a diagram angle 1, angle 3 and angle 1 or angle 3 and angle 2, angle 4 are vertically opposite angles. Okay, clear? Angle 3 or angle 1, angle 2 and angle 4 are vertically opposite angle. Okay, because ये opposite, ये तो आपको डायग्राम अगर गिवन देन आप सिंपली बोल सकते हो, okay, कि which angle is the opposite angle. चलो थोड़ा और स्टेटमेंट, see the value of vertical vertically opposite the value of vertically opposite angles are equal. ओके, मीन्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे उनका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल चलो यहां पर हमने ड्रॉ करता, ओके, चलो मान लो कि ये 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री, ये जो एंगल आपको गिवन है वो 150. ओके, चलो और बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. चलो सो फर्स्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का एंगल है. यस, टू लाइन से इंटरसेक्टिंग करे स्पेसिफिक पॉइंट, दैट मींस ये हमारा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, क्लियर. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में सी ये जो आपका ये ऑपोजिट एंगल है और ये भी ऑपोजिट एंगल है, ओके, 120 डिग्री. सॉरी, तो एंगल जो अगर ये आपको एंगल 1 एंगल ये तो आपका y और ये एंगल मान लो 2, ओके, तो ये आपको वैल्यू गिवन है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां पर हम अगर बोले तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 जो होगा उसका ऑपोजिट 3 है, दैट मींस दोनों का वैल्यू इक्वल, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो चलो यहां पर अगर ये 30 डिग्री है तो y इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, y इज इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज एज पर द रूल्स कि अगर वर्टिकली जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है. ओके, और एक शॉर्ट ट्रिक कि जो वर्टिकल के जो सारे 4 एंगल्स हैं उनका एडिशन कितना होगा, 360 डिग्री होगा. ओके, कीप इन योर माइंड. तो यहां पर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 1 एंगल है तो उसका ऑपोजिट यहां पर थर्ड एंगल हम मान ले. ओके, तो ये 1 and 3 को, ये आपका फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड ये आपका फोर्थ. तो 1 and 3 आपके ऑपोजिट होते, तो 1 का एंगल वैल्यू 30 डिग्री, तो 3 का भी क्या होगा 30, एंड 3 पर आपका कौन सा एंगल है, y. सो y इज इक्वल टू 30 डिग्री. देन अनदर नेक्स्ट वन कि एंगल b, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल. अब एंगल 2 का वैल्यू तो x है, ओके, और एंगल 4 वैल्यू इज 150 डिग्री. ओके, क्लियर. सो ये था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्लियर. सो थोड़ा लेक्चर हमारा लॉन्ग हुआ है, बट अगर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम आती है. ओके, तभी इसलिए हमने पैरेलल कंटिन्यू रखा. ओके, तो टोटल हमने आज डिस्कस किया, पॉइंट से स्टार्ट किया था, हमारे जो डिफरेंट टर्म्स थे, पॉइंट हमने डिस्कस किया, आफ्टर दैट लाइन किया, लाइन सेगमेंट किया, रे किया. अकॉर्डिंग टू द रे हमने टोटल 11 टाइप्स ऑफ एंगल स्टडी किए. ओके, विद एग्जांपल, ओके, और विद क्लैरिफिकेशन एंड डेफिनेशन. ओके, अब इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है कि अगर 2 लाइन आपको इंटरसेक्ट करी दैट मींस पैरेलल लाइन का कांसेप्ट होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इज ऑल द टाइम इक्वल. तो ये आपके होते हैं पैरेलल लाइन. ओके, जो आपको आई थिंक क्लियर होगा. ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द
एक्सरसाइज 6.1 ओके, बिकॉज यहां तक जो हमने डिस्कस किया ओके टिल 11th क्वेश्चन सॉरी 11th एग्जाम तक ओके, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन में ओके। क्वेश्चन हम जब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे देन आपको अगेन मोर क्लैरिटी आएगी ओके अबाउट देम, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ओके। सो व्हेन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 6.1 ओके। तो थोड़ा रीड करके रखना ओके, जब भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करें आप चेक करें ओके, तो थोड़ा रिवाइज कर बैठना ओके। और अगर पॉसिबल है तो आप भी बुक में देखकर सॉल्व करना ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस है ओके एक्सरसाइज 6.1 ओके। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो से तो स्टार्ट करेंगे ओके। सो थैंक यू वेरी मच।